एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं व्हाट आर एलिमेंट्स. ओके, बट बिफोर दैट मैं थोड़ा सा ब्रश अप कर देती हूँ वट एवर आई हैव टॉट यू इन द प्रीवियस वीडियो. So I have started a new chapter, structures of matter, and there I have already teach you that what is matter, what is atoms, and what are the structures of an atom, right? We have discussed that matter is something which has mass and occupies space, and exactly हम लोगों ने definition भी पढ़ा था कि matter का definition क्या है, कैसे हम लोग matter को define कर सकते हैं, right? So matter can be defined as anything that occupies space and has mass, right? It exists in three physical forms or states, which is solid, liquid and gases, right? हम लोगों ने ऑल्सो डिस्कस किया था दैट मैटर इज़ मेड अप ऑफ स्मॉल टाइनी पार्टिकल्स विच इज़ कॉल्ड एटम्स, राइट? एंड then we have seen some of the examples of atoms and matter, right? Then how can we define atom? So an atom is the smallest particle of an element that can take part in a chemical reaction. It may or may not exist independently, right? But we have also seen that an atom consists of even smaller particles within itself, and that are the protons, electrons and neutrons. Protons are the positively charged particles, electrons are the negative charged particles, and neutrons are the neutrally charged particles, right? We have seen them. Then we were discussing about how chemically matter can be classified into three categories, and those are elements, compound and mixture. In my separate videos I will teach you what is element, what is compound and what is mixtures, okay? Because ये बहुत थोड़ा brief concept है, इसको अच्छे से समझना होगा, and for that I have thought so. Okay, so we'll start from what is elements or what are elements. Elements को हम लोग कुछ इस तरीके से समझते हैं कि okay, I'm using a brush. Okay, so here you think कि purple, दो ठो purple ball हैं different. Okay, suppose this is ball A. Let me use some other color. Suppose this is ball A and this is ball B. So we'll add, अगर हम लोग ऐड करेंगे बॉल A को बॉल B से तो ये बन जाएगा बॉल AB, राइट? एक ही कलर का बॉल है. बट अगर मैं बोलूँ एलिमेंट्स के हिसाब से इसे मैं देखूँ तो ये है, this is an atom, this purple one is an atom of oxygen and this is also an atom of oxygen. So oxygen का दो atom combine होगा, means add होगा to form O2 का मॉलिक्यूल, यानी कि दो ऑक्सीजन एटम जब कंबाइन होते हैं तो एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बन के तैयार होता है, ठीक है? विच इज़ ऑक्सीजन विच वी कंज्यूम, राइट, इन आवर प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन. सो इस तरीके से एलिमेंट्स को हम लोग डिफाइन करते हैं. एक और एग्जांपल अगर मैं लूँ तो यहाँ पे मैं लेती हूँ ब्लू बॉल्स. यू कैन सी नंबर 2, यू कैन सी blue balls, right? So suppose this is one atom of hydrogen and this is the second atom of hydrogen. तो दो हाइड्रोजन के एटम जब मिलते हैं तो क्या बनते हैं? एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल, ठीक है? सो हम लोग देख रहे हैं कि एटम्स कंबाइन हो रहे हैं टू फॉर्म एन एलिमेंट, राइट? तो दिस इज़ व्हाट एलिमेंट्स आर. एलिमेंट्स का अगर मैं definition दूँ तो एलिमेंट्स आर द ग्रुप्स ऑफ एटम विच हैव द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन देयर atomic nuclei. Although an element's atoms have the same number of proton, they can have different numbers of neutrons and hence different masses. यानी कि elements जो होते हैं उनके अंदर atoms होते हैं, मतलब atoms combine होते हैं to form an molecule. And what is this molecule? We'll discuss about it also. तो elements क्या हैं? Elements में हम लोग देखते हैं कि group of atoms जो है वो add हो जाते हैं, ठीक है? Group of atoms forms the, मतलब एक जैसे दिखने वाले दो बॉल कंबाइन होते हैं टू फॉर्म वन एलिमेंट, लाइक दैट, ओके? सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो हैं वो ऐड होते हैं, मतलब सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स देखने को मिलते हैं यहाँ पे इन दी एटॉमिक न्यूक्ली. एटॉमिक न्यूक्ली के बारे में मैंने बताया था कि एटम का न्यूक्लियस क्या है और कहाँ प्रेजेंट होता है, राइट? ऑल्दो एटम्स जो हैं, एलिमेंट्स के जो एटम्स होते हैं, its number of the protons is same in all the atoms, but it can have the different number of neutrons and different mass numbers can be there, ठीक है? अभी के लिए
ज़्यादा प्रेशराइज होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एलिमेंट्स के बारे में बस इतना जान लो कि दो एटम्स कंबाइन होते हैं टू फॉर्म वन मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, ठीक है। दो एक जैसे दिखने वाले एटम्स जो हैं वो कंबाइन होते हैं टू फॉर्म वन मॉलिक्यूल ऑफ oxygen, which is an element, okay, like that. Understood? Some common example if we'll talk about elements, so they are carbon, tin, hydrogen and oxygen, okay. There are total 118 different elements which is known to us, and out of which 92 elements जो हैं वो नेचुरल होते हैं और 26 जो होते हैं वो कि मैन मेड होते हैं, यानी कि साइंटिस्ट लोग लैबोरेटरीज में बनाते हैं। वन एग्जांपल कैन बी ट्रांसपेरेंसीज, एक ऐसा ही मतलब एलिमेंट है जो कि लैबोरेटरी में बनाया जाता है। बहुत सारे एटम्स हो गए, नहीं, वो टोटल 118। सो क्या हम लोग उनके नाम याद कर सकते हैं? नहीं। सो हमारे मतलब इनके नाम याद करना बहुत लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा, राइट। एंड तो इसीलिए इस चीज़ को आसान बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि ऑल जो भी एटम्स हैं वो डिनोट किए जाते हैं बाय सर्टेन सिम्बॉल्स टू आइडेंटिफाई देम ईजिली, एंड सम ऑफ द सिम्बॉल्स आर गिवन इन द पिक्चर। यू कैन सी हियर दैट हाइड्रोजन को क्या लिखा जा रहा है? H, ऑक्सीजन को O, कॉपर को Cu। क्यों लिखा जा रहा है? दिस इज़ द सिंबल। इसे हम लोग आसानी से लर्न करने के लिए, सारे एलिमेंट्स को हम लोग आसानी से याद करने के लिए इसे हम लोग सिंबल्स के थ्रू पढ़ते हैं, एंड दैट इज़ व्हाट कॉल्ड एलिमेंट्स, ओके। वंस अगैन मैं एलिमेंट्स के बारे में थोड़ा सा बता दे रही हूँ। एलिमेंट्स जो होते हैं मतलब व्हेन ग्रुप ऑफ एटम्स, जो एक जैसे दिखने वाले एटम्स जब कंबाइन होते हैं, देन इट फॉर्म अ मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, ओके, और इट कैन मेक अ मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन, कंपाउंड, ओके। एलिमेंट्स क्या होते हैं? दो एक जैसे दिखने वाले जो एटम्स होते हैं, व्हेन दे कंबाइन दे फॉर्म अ मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। कंपाउंड के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सो I hope you have understood what are elements, and if not, once again you watch it. I hope and I think that you will understand. Thank you for watching my video. I hope it is helpful for you. Next video में मैं बताऊँगी कि what are compounds, and then through this way we'll proceed to the chapter. Okay, thank you.